Hi guys, welcome back to my channel and you are watching Auto Magical Economics and it's me Anita and आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी. व्हाट इज़ यूटिलिटी? सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. मुझे बहुत प्यास लगी, मैंने 2 गिलास पानी पी लिया. वो पानी पीने के बाद मेरी प्यास बुझ गई, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला. जो सेटिस्फैक्शन मुझे 2 गिलास पानी पीने के बाद मिला वो सेटिस्फैक्शन कहलाता है यूटिलिटी. Another example is if you are hungry, you eat food. When you eat food, you feel some satisfaction, and that satisfaction is known as utility. So, in simple words, you can say that in simple words, you can say that the satisfaction derived from the consumption of a commodity is known as utility. कोई भी commodity जब हम consume करते हैं उस consumption से जो हमें satisfaction मिलता है वो satisfaction कहलाता है utility. Now you know what is the definition of utility or what is utility. That is a simple words, it's a satisfaction of consuming some commodity. Now next is measurement of utility. There are two methods. First is cardinal, which is given by Marshall, and second one is which is given by Hicks. यहाँ पे दो मेथड्स हैं यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए या निकालने के लिए. पहला है आपका कार्डिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल. First method is cardinal. Cardinal means you can write your satisfaction in terms of numbers like 1, 2, 3, which is given by Marshall. According to Marshall, we can count our utility or our satisfaction power. But according to the Hicks, who has given the ordinal method, he said you cannot calculate your utility in terms of numbers. You can only compare it as low, high or in between two commodities, but you cannot write or compute it in a numbers. So in today's video we'll going to learn about the cardinal method of utility. In this method, Marshall said you can write your satisfaction or calculate your satisfaction, your utility in terms of numbers like 1, 2 and 3, cardinal numbers. So, the next is types of utility or terms in utility. There are two terms. First one is total utility. You can write it as TU, and second one is marginal utility, or you can write it as a MU. Now we will learn about the so now the terms in utility are total utility and marginal utility.
You can write total utility as TU and marginal utility as MU, and the formula for TU is all total of MU. MU की जितनी भी नंबर्स हैं अगर आप उनको ऐड कर देंगे, सब टोटल कर देंगे उनका, तो दैट विल बी TU. And what is the formula for MU? It's TU n minus TU n minus 1. मीन्स कि TU की जो टर्म है जिसका हम MU निकाल रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले टर्म को उससे माइनस कर देंगे. ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे. सो हियर इज़ अ practical example of total utility and marginal utility. You can see here in quantity there are 5 quantity 1 2 3 4 5, and in those quantity level TU is 100 190 270 340 and 400. And how we will calculate now MU? I said the formula for MU was TU n minus TU n minus 1. That means just before the term. So here in the first level where the quantity is 1, MU will always also be 100 as it is in TU. Why? Because जैसे आपने यहाँ पे फार्मूला में देखा TU n minus TU n minus 1 का मतलब था कि इस लेवल से जस्ट ऊपर वाली, तो ऑब्वियसली 1 से पहले क्या आई होगी 0, और 0 लेवल पे TU भी क्या रहा होगा 0 रहा होगा, तो इसलिए 100 माइनस 0 TU n माइनस TU 0 जस्ट बिफोर दिस टर्म. सो हियर आंसर विल बी ओनली 100. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमारी TU 2 है माइनस TU 1 होगा, क्योंकि हमारी ये वाली करंट टर्म है 2 एंड इससे जस्ट बिफोर है 1, तो 190 माइनस 100 विच इज़ 90. TU 2 माइनस TU 1, TU 2 में से TU 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा MU सेकेंड स्टेज पे. थर्ड स्टेज पे इट्स 270, सो 270 माइनस 190. अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80, और ये है TU थर्ड माइनस TU सेकेंड. नेक्स्ट फोर्थ लेवल पे है 340. अब 340 को हम किससे माइनस करेंगे? यस 270 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 70. 340 माइनस 270 70. TU 4 माइनस TU 3. ये है TU 1 TU 2 TU 3 TU 4 एंड TU 5. TU 1 को हमने माइनस किया TU 0 से, TU 2 को माइनस किया TU 1 से, TU 3 को TU 2, TU 4 को TU 3 से एंड TU 5 को TU 4 से माइनस करेंगे, एंड आंसर आ गया हमारे पास 60. Now we will present this schedule in the with the help of a graph or a diagram. Here this is y axis, this is x axis, here it is 0, its quantity, and it is utility TU and MU. Now look at the schedule. Quantity 1 पे TU कितना है 100, तो ये रही क्वांटिटी 1 और उस पर TU कितना है 100, यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया. क्वांटिटी 2 पे TU है 190, तो क्वांटिटी 2 पे मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया 190. क्वांटिटी 3 पे 270, ये है इट्स अराउंड 270, तो 3 से थोड़ा सा नीचे आएगा 300 से. नेक्स्ट है आपका 340. फोर्थ लेवल पे 340 है, तो 340 इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो ये रहा आपका 340. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ लेवल पे 400, तो इट्स जस्ट 400. आप पहले डॉट लगा लीजिए, उसके बाद उसे आप कर्व बना सकते हैं. नाउ टच दीज डॉट्स एंड इट TU. ये है आपका TU कर्व. नेक्स्ट इज MU कर्व. MU कितना है फर्स्ट लेवल पे 100. व्हेन देयर इज अ क्वांटिटी 1, MU इज 100 at that level. At the point of at the quantity of 2, MU is 90, just below 100. थर्ड क्वांटिटी पे it's 80, then it's 70, and then it's 60. Now touch these lines. This is MU curve and this is
TU का. This is a diagrammatic presentation of this schedule that which shows कि TU हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ चढ़ता है एंड MU आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, इसका भी रीज़न है जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ये आपका था प्रेजेंटेशन शेड्यूल का जो मैंने आपको पहले लिखवाया था. Now what is the observation of this diagram? Here is the observations which we have find out from this diagram. सबसे पहला है TU increases when MU is positive. मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो TU है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ हो रहा है जब MU डिक्रीज़ होता है, पॉजिटिव होता है सॉरी. तो ये अभी पॉजिटिव है, डिक्लाइन कर रहा है बट पॉजिटिव है. ठीक है. सेकेंड है आपका TU एट मैक्सिमम व्हेन MU इज 0. MU यहाँ पे MU जब यहाँ पे 0 होता है तो जो TU है वो उसके मैक्सिमम लेवल पे होता है. थर्ड पॉइंट है TU स्टार्ट्स डिक्लाइन व्हेन MU इज नेगेटिव. जो TU है इस पॉइंट के बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देता है क्योंकि MU वहाँ पे नेगेटिव होना शुरू कर देता है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि एज मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम्ड MU डिक्लाइंस एंड कैन बी 0 और इवन बिकम्स नेगेटिव. वो क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वो जो हमारा MU है वो डिक्लाइन करता जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 तक भी हो जाता है और कई बार वो नेगेटिव भी हो जाता है. लास्ट है हमारा डिक्रीजिंग MU शोज इंक्रीजिंग TU बट एट डिमिनिशिंग रेट. जो डिक्रीजिंग MU है वो ये शो करता है कि जो TU है वो इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. अब मैं ये शेड्यूल है, पहले इस शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनका रिलेशनशिप समझाती हूँ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो हियर इज क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and at these quantities at 0 TU is also 0. At one quantity TU is 8, quantity 2 TU is 14, quantity 3 TU 18, 4 पे 20, 5 पे भी 20 and 6 पे 18. अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, MU. अभी आपको मैंने लास्ट शेड्यूल में समझाया था. सो यू आर नाउ एबल टू कैलकुलेट दिस MU. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट लेवल है जो 0. सो इस लेवल को पे MU कुछ भी नहीं होगा, 0 से आप माइनस किसको करेंगे. नेक्स्ट है 8. सो 8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8. सेकेंड इज 14, 14 माइनस 8, then 18 minus 14, then 20 minus 18 and 20 minus 20 and then 18 minus 20. Now calculate 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6. It's 4, it's 2, it's 0 and it's minus 2. So we got the MU. At level 0 MU is nothing because we cannot minus 0 with anything. So here at this level 2 8 minus 0 is 8 because we have to minus 8 with the 0. TU 1 minus TU 0. Oh sorry, yes, TU 0. Now TU 2 minus TU 1, it's 6. TU 3 minus TU 2, it's 4. TU 4 minus TU 18, 2. TU 5 minus 4, 0. 6 minus 5 minus 2. तो ये है इनका रिलेशनशिप. अब मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाती हूँ जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बट मैंने ये जो डायग्राम है वो इस शेड्यूल के थ्रू नहीं बनाया क्योंकि उसको मैं थोड़ा ईजी रखना चाहती थी. सो लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी. ये जो डायग्राम है ये रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU को शो करता है. सबसे पहले पॉइंट है देखिए
टी यू और एम यू एक ही पॉइंट से शुरू हुए हैं। टी यू है इंक्रीजिंग रेट पे, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि एम यू नीचे की तरफ जा रहा है। ये शो करता है कि एम यू हमेशा डिक्लाइन होता जाता है। हर एक एक्स्ट्रा जब हम कंजम्पशन करते हैं, एक एडिशनल क्वांटिटी को, एडिशनल यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारा एम यू जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 0 लेवल पे तो कुछ नहीं था, फर्स्ट लेवल पे 8 था, सेकंड लेवल पे 6 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। ये डिक्लाइन होता जा रहा है, नीचे को गिरता जा रहा है। ठीक है, ये शो करता है कि जब हम एडिशनल यूनिट एक कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जा रही है। वही चीज़ ये इसका कर्व भी शो कर रहा है। एम यू पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि एम यू सिर्फ पॉजिटिव होगा या फिर वो डिक्लाइन करेगा, बट वो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता है। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है, जब एम यू पॉजिटिव होता है तो टी यू इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता जाता है। जब एम यू 0 होता है, जब एम यू 0 पॉइंट पे है तो टी यू अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड जो इनके बीच का रिलेशन है वो क्या है कि जो टी यू है, ये जब एम यू नेगेटिव होना शुरू कर देता है तो टी यू डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब एम यू पॉजिटिव होता है टी यू इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, जब एम यू 0 होता है टी यू अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, और जब एम यू नेगेटिव होता है तो टी यू डिक्लाइन करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये लॉ भी वही बोलता है कि जब भी आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्लाइन करता जाएगा। ये कहता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यही इसका एक और नाम भी है, इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आपको बहुत भूख लगी है, आपने चपाती खाई, 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 चपाती खाई, किसी लेवल पे जाके आप रुक जाओगे, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा। पहली चपाती में आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरी चपाती में थोड़ा सा आपको कम अच्छा लगेगा, उसके बाद जो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो कम होता जाता है, फिर आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा और लास्ट में एक लेवल पे जा कर के आप बोलोगे नहीं बस अब और नहीं खाना। तो ये जो हमारा लेवल यूटिलिटी का लेवल है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता जाता है, या आप कहें कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होता जाता है। और यही कहता है हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कि जब भी आप कोई एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे, एक एक्स्ट्रा चपाती खाते जाएंगे, तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती जाती है। सो देयर आर 2 एजम्पशंस फॉर दिस लॉ, और वो 2 एजम्पशंस क्या है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कमोडिटी का आप एक स्टैंडर्ड लेवल ही कंज्यूम करेंगे। जैसे कि हम 1 कप चाय की बात करते हैं तो 1 कप चाय ही कंज्यूम करेंगे, यानी कि एक स्पून से लेकर के, वो तो आप बहुत सारे पी सकते हो, आपको आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन ना हो, बट स्टैंडर्ड उसका यूनिट क्या है, 1 कप चाय, तो वो 1 कप चाय ही होनी चाहिए। या आप 1 रोटी खाते तो वो 1 रोटी ही होनी चाहिए, 1 कोर या 1 टुकड़ा रोटी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एजम्पशन कहता है कि कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअस। जो कंजम्पशन है आपके कमोडिटी का वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अभी 1 कप चाय पी, उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद फिर 1 कप चाय पीऊँगी, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे फिर आपका ये लॉ काम नहीं करेगा। या फिर अगर आप रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी कंटिन्यूअसली खाएंगे कि 1 रोटी खाई, फिर उसके बाद दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, फिर चौथी खाई। ऐसा नहीं कि 1 रोटी आज खा रहे हैं, 1 रोटी रात को खा रहे हैं। दैट इज़ नॉट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे आप यूटिलिटी नहीं पता कर पाएंगे अगर आप इस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे 2 एजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना है। पहला है कि स्टैंडर्ड यूनिट ही कंज्यूम होनी चाहिए, जैसे कि 1 कप चाय, ना कि 1 स्पून ऑफ टी। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअसली आप कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 रोटी अभी खाई, 1 रोटी शाम को खाई या 1-2 घंटे बाद खाई। दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा है व्हाट इज़ यूटिलिटी, सेकंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, टर्म्स इन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, relationship between TU and MU, and the last one is law of diminishing marginal utility. अब that's all for the day. You will get the notes in the next video. If you like it, please like, share and comment, and subscribe to my channel, which is Automagical Economics. Till then, stay safe, stay happy.